Good evening and a very warm welcome on the 360-degree show on Transcontinental Times. Tonight I join you from the absolutely breathtaking island of Bali of the Republic of Indonesia. I have an equally amazing guest as we always come up with every week. But before we actually speak to the guest, I would like to give some context which will help you understand the guest better. Cast your mind eye to your role models. Whoever is your role model, it could be a politician, it could be a sports star, it could be a film star, whoever is your role model. And think for a moment why you consider them to be your role model. Invariably, not always, but invariably, most of the time, you will realize that you admire them because in their life, they have overcome certain adversity at some point and then bounced back from that. They have shown the traits of tenacity, grit, determination, perseverance, hard work, all of these in combination or at least in parts. That's what makes a role model. That's what makes a hero. Always somebody who comes from the depths of despair or somebody who's doing well and has a dip in their fortunes and then comes back even stronger. They show a certain mental strength that we admire. Most of the time, this adversity is either due to circumstances created by themselves, their own behaviors, or sometimes things conspire to put them in that spot. But what does one do if you're born with adversity? How do you overcome that? That is the perfect introduction for our guest tonight, who's visually impaired but one of the upcoming leading comic and comedians of India, Abhay Kumar Sharma. Join me in welcoming him from Lucknow. Welcome, Abhay. How are you? Yes, thank you so much, sir, and namaste from Bharat to the all viewers of this show across the world. I am very fine. Thank you. Abhay, I was speaking to some friends tonight और मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं क्या पूछूं इनसे. तो मेरा पहला सवाल जो है वो बड़ा ही क्लिशेड सवाल है. कभी आपने सोचा है कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड नहीं होते तो क्या आप कॉमेडियन ही बनते या कुछ और चूज करते? To be honest, it's a very tough question, and according to my situation, it's an imaginary question. But what would have been, I never thought, but just I am trying to do, I am trying to fight with my ओरिजिनल सिचुएशन. कल्पनाओं की दुनिया में हम जाते, क्या होते क्या नहीं होते. कभी कभी सोचते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे कमेंटेटर होते, बहुत अच्छे क्रिकेटर होते, ये करते वो करते, बट ये सब बातें आती हैं. फिलहाल व्हाट आई हैव टू डू जस्ट अभी जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है. वेल सेड अभय जी. इसी से मेरा जुड़ा हुआ अगला सवाल है. एक कॉमेडियन के लिए बेसिकली वो लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के क्वर्क्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें से कुछ निकाल के उसको प्रेजेंट करते हैं. लोगों को हंसाने का काम काफी मुश्किल होता है. यस, विजुअली इम्पेयर्ड होने में कितना मुश्किल होता है? मतलब ऑब्जर्व करना तो एक सेंस तो चला गया ना 5 में से. सो कैसे इसको ओवरकम किया आपने? यू राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास एक सेंस न हो तो. बट ये होता है कि आई एम फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉलोइंग क्रिकेट बाय माय चाइल्डहुड. और उसमें मैंने बहुत सारी टीमों को आई हैव सीन दैट कि उनके अच्छे प्लेयर नहीं रहते हैं, बड़े प्लेयर नहीं रहते हैं, ऑल दो दे प्लेड वेल एंड वन द गेम्स. तो मैंने भी यही सोचा है कि अब मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज में मुझे बेटर करना है. तो टफ तो होता है बिकॉज ऑफ कि आई कैन नॉट ऑब्जर्व द बॉडी मूवमेंट.
physical moments, how people reacting, what they are doing, and just मुझे जो पूरा वर्ल्ड है वो कानों से ही सुनना है. जी. हेयरिंग इज लाइक विजन. तो ये बहुत टफ होता है, बट क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें हम सुनते हैं और उसमें कुछ कुछ चीजें जहां बॉडी मूवमेंट की बात आती है तो एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं. और बाकी बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है इस चीज को ऑब्जर्व कर पाना कि आपके सामने पीपल और वर्ड क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं. मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं और कोई नहीं कह सकता कि आप इमेजिन कर रहे हैं मूवमेंट्स, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह से लाते हैं कि एकदम पता ही नहीं चलता, कोई फर्क ही नहीं पता चलता. तो आपने तो इसको ओवरकम किया है बहुत अच्छी तरह से. मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं. आजकल तो कॉमेडियन होना इंडिया में रिस्की हो गया है. तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के शो कैंसिल हो जाते हैं, तरह तरह की वायलेंस हो जाती है कभी कभी. कहाँ कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पे ये हास्य है और कहाँ पे ये इंसल्टिंग हो जाता है? नहीं, दरअसल क्या है कि आर्ट इज आर्ट एंड आइडियोलॉजी इज आइडियोलॉजी. बट इन दीज डेज in India or in some parts of other countries also, what we are able to listen, जो चीजें आ रही हैं कि लोग हर चीज को, एवरी हैपनिंग्स, एवरी क्रिएटिविटी, एवरी आर्ट जो भी है उसको लोग एक आइडियोलॉजी से जोड़ के देखने लगे हैं. तो वहां पे क्या होता है कि अपने मन में लोग एक लाइन खींच चुके हैं कि ये चीज यहीं तक सही है, और उनके द्वारा क्रिएट किए गए सरकमस्टांसेस में कोई भी आर्टिस्ट जो कि सच को कहेगा, जो कि ट्रू बोलेगा, उजागर करना चाहेगा या उसके साथ जाएगा, वो उनके लाइन से अंडर ही रहेगा और वहां पे उसको रोक दिया जाएगा. तो आर्ट अलग चीज है और आइडियोलॉजी अलग चीज है. जब उस पर्सपेक्टिव में, उस वेज में, उन जोन में कोई बात कही जाएगी तो वो बात अलग होगी. लेकिन अगर कोई अपने क्रिएटिविटी के अंदर समाज के कंडीशंस को, सिचुएशंस को देख रहा है, अगर वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग. ट्रू ट्रू, वेल सेड कि आइडियोलॉजी और आर्ट में फर्क होना चाहिए. लोग अपने दिमाग में एक लकीर खींच लेते हैं और उसके बाद हर तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. बट आर्ट की बात करें तो मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह कि भोपाल में आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, हास्य सम्मेलन किया था उन लोगों का जो किसी ना किसी तरह से इम्पेयर्ड है. उसकी सोच कहाँ से आई थी? उसकी सोच इससे थी कि एक मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी है और वो चाहते हैं, उनका ये स्टेप, इनिशिएटिव जो भी है, देख करके कि हम विजुअली इम्पेयर्ड या और जो भी दूसरे टाइप के भी अदर टाइप्स ऑफ डिसेबल पीपल हैं, तो हाउ कैन वी empower them and how can we involve them by literature, through the literature. So just they created a program, they organized a program to aware the people and to connect the disabled people with others and our talent. They want to showcase our talent to the other peoples, and they were trying to convey a message that these guys have also potential. We should listen, we should read. मैं देख रहा था उसके भी कुछ वीडियोस. बड़ा कमाल का कार्यक्रम था, बहुत ही मजा आया देख के. लेकिन एक और चीज पे बात करते हैं. आर्टिस्ट की जिंदगी तो ऐसे भी मुश्किल होती है और स्टैंड अप कॉमिक की जिंदगी तो और भी मुश्किल है. इसे दूर से देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन पैसे तो बहुत कम है इसको. और आजकल तो खैर फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है क्योंकि अब कुछ एटलीस्ट टॉप आर्टिस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह तो अब एक आर्ट फॉर्म की तरह
लोग समझने लगे। लेकिन जब से आपने शुरू किया, उस समय Yes. से आपको लगता है कुछ सुधार हुआ है, थिंग्स हैव गॉट बेटर, और व्हाट इट इज? Uh, एक जो अच्छा, बहुत ही, मतलब आपने काफी अच्छे से अपने क्वेश्चनिंग को फ्रेम किया है, एंड थैंक्स टू यू, एंड दैट्स व्हाई समवन said that mentor, coach, and so many things. So just I would like to say that when I started the journey, at that time, I was able to listen political mimicry or so many satires on television in India, national entertainment television. But in these days, you can't do such kind of things. But uh, आज के दौर में जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने आपको ये चांसेस दे दिया है कि कहीं से भी अगर आपकी एक्सेप्टेंस ड्यू टू एनी रीजंस नहीं होती है, सो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स। सो अगर कहीं से चीजें बंद है, यूजुअली पीपल यूज टू से फॉर मी दैट if your eyes are closed, ईश्वर, गॉड ओपन योर माइंड। सो जस्ट इफ समथिंग जो कि चैनल में और बाकी चीजों में बंद हुई हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए खुली हैं। लेकिन सिर्फ टेलीविजन और ये अदर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या और प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। प्रेजेंटेशन के लेवल पे ये चीजें तो आसान हुई हैं कि हम बात कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किसी बात का जो इम्पैक्ट है, किसी आर्ट का जो इम्पैक्ट है, वो सुने जाने के बाद है, वो उसके बाद मिलने वाले अपलॉजेस पे, रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। आज के टाइम पे मतलब कि लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं। अगर वो सच में एक आर्टिस्ट अपने दिल से लगाने लगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सही बात है, सही बात है। आप, यू मेंशन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड टेलीविजन चैनल। ऑब्वियसली उस पे तो कॉमेडी डिफरेंट तरह की होती है, उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। मैंने आपका एक प्रमोशन वीडियो भी देखा था, और उसके बारे में मुझे मालूम है आपने काफी कहा है और कहते आ रहे हैं। हुआ क्या? कौन सा सर? वो आपका मैंने प्रोमोस देखा था, इंडियाज गॉट टैलेंट या वैसे अच्छा किसी अच्छा program। अच्छा अच्छा। तो उसमें यस यस। हुआ क्या? मतलब आर्टिस्ट तो काफी एक्सप्लॉइट होते हैं हर जगह, लेकिन आजकल इस लेवल पे आके थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत अच्छा आपने ये चीज आप तक पहुंची, आपने देखा। थैंक्स टू यू कि यू हैव टाइम एंड आपने इसको पूछा भी। तो उसमें ये था एक्चुअली सर कि हम अपनी प्रिपरेशंस कर रहे थे सिविल सर्विसेज की भी, बिकॉज ऑफ कि जो जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी इंटर तक, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के कंस्टिट्यूंसीज में है, वाराणसी में, तो वो स्कूल के 9 to 12th क्लासेस क्लोज कर दी गई। देन वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, उसको अपोज किया, बट गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद आई थॉट दैट कि मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, तो इसमें मैं काम तो कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास कोई एक अच्छी परमानेंट पोजीशन होगी तो आई कैन डू बेटर, एंड आई कैन वी कैन क्रिएट आवर ऑन स्कूल अकॉर्डिंग टू आवर आइडियोलॉजी। सो मैंने एक ध्येय कोचिंग है, दे फैसिलिटेटेड, जो भी उन्होंने मुझे ये दिया, सुविधा दी कि आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। तो मैं क्लास पढ़ रहा था, तो इनके कई बार कॉल आया कि आप मेरे यहाँ आ जाइए। मैंने कहा कि नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम की मुझे करना है कुछ। तो दे सेड कि नहीं, हमारे यहाँ भी प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, और आप ऑडिशन के लिए आइए। फिर मैं गया दिल्ली में, तो उन्होंने स्टूडियो राउंड के लिए मुझे बोला कि आपको अब मुंबई भी आना पड़ेगा। उनकी रियलिटी टीम आई, उन्होंने पूरा शूट किया अगल बगल, सबको पता चल गया कि मैं आईजीटी में जा रहा हूँ। और आफ्टर देन मुंबई में दे कॉल्ड मी, एंड जब मैं गया मुंबई पे, आई वेंट देयर, आई परफॉर्म्ड एंड जजेस अप्रिशिएटेड, दे सेड you are selected for the next round. And after then the creative team and production channel also called me for the next round.
But in these days, I was opposing UP government in election. Uh, I am from UP and elections are going on here. So अब पता नहीं वो रीजन रहा हो या जो रीजन रहा हो, शो शुरू होने के बाद मुझे कॉल आया कि आपको एक वीक में कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए. और उसके बाद बट दे डिडंट कॉल मी एंड व्हेन आई कॉल दे डिडंट पिक द कॉल. और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी उन्होंने न मुझे ब्रीफ किया, कोई मैसेज कन्वे नहीं किया. और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपने एग्जाम छोड़ के 6 महीने से इनके शो के लिए परेशान हूँ और इन्हें उसकी कोई कदर नहीं रही. तो उसके बाद मेरे सामने यही दो बातें थी कि या तो चुप रह जाइए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है, वो बोलते नहीं है. तो मैंने ये सोचा कि मेरी बात चाहे जितनी छोटे ऑडियंस, मतलब कि नंबर की संख्या में, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर, कि वो चाहे 200 लोग सुने, चाहे 2000 लोग सुने, चाहे 2 लाख लोग सुने, अब मैं अपनी बात कहूंगा लोगों तक. Abhayji, you are a true role model. When I was introducing the concept of role model, the traits that I spoke about, grit, determination, tenacity, perseverance, you have showed all of that. I can't believe in this day and age, in this modern times, a leading multinational company behaving disrespectfully. It is their choice who they put in the show. That's not a problem. I don't question that. But to be disrespectful, not take calls, etc., is something that doesn't sit very well with me. Anyway, this is probably the most serious interview for a comic artist that people have seen so far. So I will not take it into that direction anymore. And I cannot leave without asking you to take the stage for 5 minutes and show our viewers what you are capable of. Stage is yours. uh, uh, Thank you. So just one thing I always used to say, one incident that I went in Bollywood for the auditions of a role of a blind people, and I got rejected. They rejected Abhayji, me. you I you said went that you went visually impaired. yes. I went to Bollywood with my eyes open and I went bankrupt. So I don't think sight has got anything to do with it. Bollywood has that lure. Go ahead, please. Yes, so I went for the role of a blind. I gave audition. They rejected me. I said I am original blind, but they said that I am. We are not getting proper feel from you. So just I would like to do the mimic portion. Sure, So sure. many people know our former Prime Minister Manmohan Singh ji, how he speaks, how deliver his speech. Oh yeah. Dear sisters and brothers, India is the largest democratic country of the world, and my Congress party is the oldest political party of India. ये our Politically तो defense सही नहीं minister, होगा कि we only do one party and not do the other party. yeah, Honorable Defense Minister Shri Rajnath Singh ji from BJP. You know, uh, we have launched the campaign Make in India, and we are creating so many things in defense sector. Also, we are improving as well, and we are making defense expo. We are doing so great things for our army and our people also. My party is fighting the election in Uttar Pradesh state of India, and yes, I hope that we will win. And just ये अगर मैं आपसे अपने फेवरेट लालू जी का नहीं कराऊं तो ये तो जाती हो जाएगी. मेरी पैदाइशी ये बिहार की है.
और लालू जी को तो हम सुनते ही आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट वैल्यू में तो वो मेरे फेवरेट. Uh, I appreciate you for inviting me in this interview. Uh, Today, these are very painful days for me because I am totally out of the power. But when I was in railway ministry, I have planted the fruit tree. Uh, और ये बात करता है सब लोग, ये हम लोग जो है बिहार का लोग गरीब जरूर है लेकिन बेवकूफ मत समझो, उड़द चिड़िया के हर्जी लगावेला बिहार. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. अभय जी, आप इतनी अच्छी तरह से मास्टर किए हैं डिस्पाइट योर विजुअल इम्पेयरमेंट. आगे आगे की क्या सोच है? आप आजकल तो हम देखते हैं कि हर तरह के लोग पॉलिटिक्स में कूद जाते हैं एंड स्टैंड अप कॉमेडी में वाले काफी पॉलिटिक्स में जाते हैं क्योंकि उन दे हैव अ पल्स ऑन द पीपल. लोगों के मूड का इंडिकेटर एक स्टैंड अप कॉमिक ही समझता है. आपका भी कोई ऐसा विचार है आगे कि? To be honest, just I would like to reply from my perspective that मेरा जो पॉलिटिक्स को लेकर के मेरी अपनी जो सोच है कि लगभग हम एक प्रकार से देखें तो इंडिया में जो डिफरेंटली या डिसेबल पीपल जो भी कहा जाता है, लगभग कि आप समझिए कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज के डेट में इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं. एंड देयर इज नो वॉइस इन एनी हाउस, नो रिप्रेजेंटेटिव इन एनी हाउस ऑफ एनी असेंबली ऑफ दिस कंट्री. किसी भी विधानसभा में या अपने पार्लियामेंट में कोई डिसेबल पीपल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कम्युनिटी का दर्द बयां कर पाए. तो मैं इसलिए ये नहीं सोचता हूं कि मतलब मैं ही वो फेस बनूं, बट मैं ये जरूर सोचता हूं कि इस तरह का कोई फेस होना चाहिए, शुड बी देयर फॉर sharing our views and our thoughts and our problem in our parliament or assemblies. It's a very important point Abhay brings up. If we have 50 million people who are impaired in some way or the other, if it were a country, it would be among the top 25 most populous nations of the world. And the fact that there isn't adequate representation either at state level or at national level is a disgrace, and that needs to be rectified. Abhay ji, we are completely out of time, and Okay. I will give you the last word, but I hope that you continue being a role model for the youth of the country, and you become that voice of reason for people who are impaired in some way or the other. Your last words, please. Just I would like to thank all the viewers, and I will